Hello everyone, it's Disha Bhojwani, a certified dietitian with over 2+ years of experience in diet plans, right? So today we are going to discuss about the most important topic that people feel like and people question much about, and that is how to lose weight and what is the best diet to lose weight. You know what? This is something that people much like dug into, but then people are more confused and they are like they try many fat diets like low carb diets, low calorie diets, low fat diets, but then the end game is in understanding that what is the reason for your weight gain. Okay, so first in this video we are going to discuss about why do you gain weight in actual case, what is unhealthy diet, and what are the steps you need to consider before stepping into your weight loss journey. Foods, we have a lot of packets available when we visit supermarkets, and because of that people consume these things much more, right? We have things conveniently available, we try or we mostly pick those things very fastly than other things preparing them lead your sugary processed foods, your poor sedentary lifestyle, all of these things at the end affect your hormones and like signals your cortisol levels and increases its amount, and at the end it signals your cells to store fat and hence you store fat. There's a bit of role of genetics too, we can say, because there are two body types. Number first is ectomorph, and these are the people no matter how much they eat they still don't gain weight, and endomorphs are someone who even they said, I have heard people saying that मैं पानी भी पीती हूँ तो भी लगता है weight gain हो गया. So that is something that is kind of a body type, but we can always manage it in the way. 6 things that we need to keep in mind while starting your weight loss journey. First is understand your root cause. So reasons can be like myriad, but then the reasons most basic can be your sedentary lifestyle. Second can be your hormonal issues like thyroid, PCOS in case of women. It can be slight blood sugar elevation. It can be diabetes and myriad of diseases. It can even be the starting stage of disease, and that is why you have gained weight, like a pre-diabetic condition. And it can be caloric surplus, but then calorie surplus is something that is, we can say, very contradictory thing, because so whether you are going to store those calories or not is decided by your hormone signaling, right? Second thing that you need to always include is a plate method. I call it like a balanced diet. So a balanced plate should look like fiber, protein, fats, carbs, and probiotics, something in your plate to be. For example, if we look at your lunch, so आपके लंच में क्या रहना चाहिए? एक कोई वेजिटेबल हो गई, 1 से 2 वेजिटेबल हो गई फाइबर के लिए, थोड़ा सैलेड हो गया फाइबर के लिए, कार्ब्स के लिए आप राइस और रोटी ले सकते हो, या कोई भी मिलेट रोटी भी ले सकते हो। प्रोबायोटिक्स के लिए दही या फिर अचार भी ले सकते हो। देखो, अचार बोलते हैं कि अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, कि बहुत ज़्यादा मिथ है, लेकिन अगर वो घर की बनी हुई सरसों तेल में, सेंधे नमक में बनी हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप एक अचार ले सकते हो दिन भर में और वो आपके वेट लॉस में इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथी चीज़ जो आपको इंक्लूड करनी है वो है प्रोटीन का सोर्स। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर कर सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कोई नॉन वेज चिकन या एग्स इंक्लूड कर सकते हो प्रोटीन के लिए। ऐसी और आप जब ऐसी प्लेट कंज्यूम करते हो ना, तो आपका क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है दिन भर में, आप ऑटोमेटिकली ही कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो क्योंकि आप फुल और सेशिएटेड फील करते हो। प्रोटीन और फैट्स ऐसी चीज़ें जो कि आपको फुल फील कराती है और आपको सेसिएशन देती है, राइट? नाउ थर्ड थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज योर शुगर। अगर हम रिकमेंडेशंस देखें तो 25 ग्राम्स पर डे रिकमेंडेशन शुगर का है, ठीक है? तो आप दिन भर में 1 से 2 चम्मच जैगरी या स्टीविया, मंक फ्रूट, एरिथ्रिटॉल, ये सारी या मिश्री ले सकते हो। मैं बोलूँगी कि शुगर अवॉइड करो, रिफाइंड शुगर, क्योंकि उसमें एम्प्टी कैलोरीज रहती है, कोई भी मिनरल्स नहीं रहते हैं, राइट? हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ, आप कोई भी शुगर कंज्यूम करो ब्लड शुगर राइज होगा, लेकिन अगर आप शुगर को इस वे में कंज्यूम करते हो जिस वे में मैं बता रही हूँ, तो शुगर स्पाइक बहुत कम हो जाता है। जैसे कि कोई भी शुगरी या स्वीट फूड खाने से पहले कंसिडर करो कि फाइबर या प्रोटीन का कोई सोर्स ले रहे हो, जैसे कि चिया सीड्स, नट सीड्स, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें हो गई, राइट? और अपने शुगर को रिप्लेस करो। देखो, शुगर ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और शुगर बहुत सारे फूड्स में हिडन होते हैं, जो कि हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे।
फोर्थ वे है स्टार्ट योर डे विथ फैट। जब भी आप कोई भी फैट गुड फैट सोर्सेज से अपना दिन स्टार्ट करते हो, जैसे कि एवोकाडोज हो गया या फिर कोकोनट ऑयल, घी और पानी हो गया। लाइक आप गर्म पानी में 1 चम्मच घी मिला करके ले सकते हो, नट सीड्स भिगोए हुए ले सकते हो। अगर ये सारी चीज़ों से अपना दिन आप स्टार्ट करते हो तो आपको दिन भर में भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि फैट्स ना आपकी क्रेविंग्स कम करते हैं, वो आपको सेशिएशन देते हैं, जिससे आपको दिन भर में भूख कम लगती है। फॉलोड बाय आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो। नाउ फोर्थ है स्ट्रेस। जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में एक एड्रीनल ग्लैंड रहता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिसोल नाम का। अब कॉर्टिसोल आपके बॉडी के सेल्स को सिग्नल करता है फैट स्टोर करने के लिए। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कम खाना खाते हो फिर भी आप वेट गेन कर लेते हो, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो वो सारा स्टोर हो रहा है, कुछ भी बर्न नहीं हो रहा है, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, जैसे कि ओवर एक्सरसाइजिंग हो गया या फिर खुद को ज़्यादा एक्सर्शन करना, है ना। ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। इवन इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। अगर आपका इमोशनल स्टेट सही नहीं है तो भी आपको हो सकता है। अगर फिर कम 2 घंटे के लिए सोते हो, अगर आपकी स्लीप साइकिल नहीं सही नहीं है, आप लेट से रात को 1-2 बजे सो रहे हो डेली, और आप बहुत कम घंटे के लिए सो रहे हो, 3-4 घंटे के लिए, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ही है। सिक्स पॉइंट है शुगर डिटेक्ट करना। तो आजकल आप जो भी पैकेज फूड देखते हो ना, उसमें मोस्टली शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन बहुत अलग अलग नाम से, जैसे कि एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, मैल्टिटॉल। तो कोई भी चीज़ के आगे अगर ऑल है, ओ एल, या फिर ओज है, जैसे कि लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोलोज, ये सारी चीज़ें शुगर रहती है, ठीक है। इवन मेल्टिटॉल हो गया, जैसे ये सारी जो भी ऑल और ओज से सफिक्स रहती है ना, वो सारी चीज़ें शुगर रहती है, फॉर्म्स रहते हैं। सबसे खराब फॉर्म ऑफ शुगर रहता है हाई कॉर्न फ्रक्टोज सिरप। अगर आपको किसी भी फूड में के लेबल में ये चीज़ दिखता है तो उस फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि ये सिर्फ आपका ब्लड शुगर ही नहीं खराब करता है, बल्कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी करता है। कोई भी खाना कंज्यूम करते हो, कोई भी पैकेज फूड कंज्यूम करते हो और उसका लेबल रीड करते हो, आप या उसे रीड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें क्या लिखा है ना, तो उस खाने को कम्प्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि वो इतना आर्टिफिशियल है। कोई भी ऐसा खाना जो कि सही ऑयल में नहीं बनाया गया है, सही तरीके से नहीं बनाया गया है, सही हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं बनाया गया है, और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स प्रेजेंट है, वो अनहेल्दी होता है। Comment down below whether you like this video or not, and let me know which topic should I cover next. Bye bye.